رب العالمین قرآن مجید کے اندر دوسری آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بھی گناہ گار لوگوں سے مخاطب ہو رہا ہے، اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو اس دنیا کے اندر گناہوں میں اپنی زندگی کو گزارتے، اگر وہ لوگ اللہ کے اوپر ایمان لے آتے اور پرہیزگاری کی حالت میں اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو گزارتے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر کے اپنی زندگی کو گزارتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے بہترین بدلہ اور بہترین اجر موجود ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس آیت کریمہ سے ہمیں نقطہ یہ ملا کہ اگر ایک انسان اس دنیا کے اندر ایمان لے آنے کے بعد تقوی کی حالت میں، پرہیزگاری کی حالت میں اگر اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو وہ آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے روک لے گا۔ کچھ ایسے عمل جس عمل کو کر لینے کے بعد آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے اور برائیوں سے بچا سکتا ہے۔ ہم اس دنیا کے اندر دیکھتے ہیں اکثر انسانوں کو کہ وہ برائیوں میں ملوث رہتا ہے، گناہ کی کاموں کو انجام دینے میں لگا ہوا رہتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ چاہتے کہ ہم برائی کو چھوڑ دیں، جن لوگوں کا یہ اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے کہ کسی طرح ہم برائیوں سے بچ جائیں، ہم کسی طرح اپنے آپ کو برائیوں سے بچا لیں۔ تو آج کا یہ خطبہ جمعہ ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے جو اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا چاہتا ہے، جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے چند نکات ہیں اور چند ایسے کام ہیں، چند ایسے امور ہیں جس کام کو کر لینے کے بعد ایک آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سا نقطہ ہے، وہ کون سا حربہ ہے، وہ کون سے امور ہیں جس امور کو اپنانے کے بعد، جس کام کو کر لینے کے بعد آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ایمان ہے۔ آئیے سب سے پہلے قرآن مجید سے اسی ایمان کے اوپر ایک آیت کریمہ کو دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر ایسے امور کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اے دنیا والے لوگوں، اگر تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہتے ہو، اگر تم اپنے آپ کو برائیوں سے روکنا چاہتے ہو، تم برائیوں کی دلدل میں جا رہے ہو، تم گناہوں کی راستے پر جا رہے ہو اور تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں، تم یہ سوچتے ہو کہ ہم اپنے آپ کو برائیوں سے روک لیں، تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تم اس چیز کے اوپر عمل کرو وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لے آتا ہے اور جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دے دیتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے انسان کے دل کو ہدایت سے آراستہ کر دیتا ہے، ایسے لوگوں کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کے راستے کے اوپر گامزن کر دیتا ہے۔ جو آدمی اللہ کے اوپر ایمان لے آتا ہے، جس کا اعتماد، جس کا یقین، جس کا ایمان اللہ کے اوپر ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے انسان کے دل کو ہدایت کے راستے کی طرف موڑ دیتا ہے۔ گویا کہ ایمان سے پہلے اگر ایک انسان برائیوں کا ارتکاب کرتا تھا، ایمان سے پہلے اگر غلط راستے کے اوپر چلتا تھا، تو جیسے ہی وہ آدمی ایمان کو لے کر کے آئے گا، جیسے ہی وہ آدمی کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے گا، اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی کو گزارنے لگے گا، فوراً اس کے دل کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت کے راستے کے اوپر
गामज़न कर देगा। ये सबसे पहली चीज़। आइए एक दूसरी दलील को देखते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर दूसरी आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है, वलौ अन्नहुम आमनू वत्तक़ौ लमसूबतुम मिन इंदिल्लाहि खैर। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर भी गुनाहगार लोगों से मुखातिब हो रहा है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों की तरफ इशारा कर रहा है जो इस दुनिया के अंदर गुनाहों में अपनी जिंदगी को गुजारता है। और जिन लोगों ने गुनाहों में अपनी जिंदगी को गुजार करके इस दुनिया से चला गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है, वलौ अन्नहुम आमनू वत्तक़ौ लमसूबतुम मिन इंदिल्लाहि खैर। अगर वो लोग अल्लाह के ऊपर ईमान ले आते और परहेज़गारी की हालत में इस दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को गुजारते, अल्लाह तबारक व तआला से डर करके अपनी जिंदगी को गुजारते, तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उसके लिए बेहतरीन बदला और बेहतरीन अज्र मौजूद है। मेरे अजीज साथियों, इस आयत करीमा से हमें नुक्ता ये मिला कि अगर एक इंसान इस दुनिया के अंदर ईमान ले आने के बाद तक़वी की हालत में, परहेज़गारी की हालत में अगर अपनी जिंदगी को गुजारता है तो वो आदमी अपने आप को गुनाहों से रोक लेगा। क्योंकि अल्लाह कह रहा है कि जो आदमी ईमान ले आने के बाद परहेज़गारी की हालत में यानी अल्लाह से डर करके अपनी जिंदगी को गुजारेगा, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह के यहाँ बेहतरीन बदला और बेहतरीन अज्र मौजूद है। इस आयत करीमा से नुक्ता ये मिला कि ईमान के बाद एक इंसान गलत रास्ते की तरफ जा ही नहीं सकता। यहाँ पर इन दोनों आयत करीमा को सामने रखने के बाद सहाबाए किराम की जिंदगियों के ऊपर कुछ देर रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। सहाबाए किराम जिस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरजमीन अरब की तरफ नबी बना करके भेजा, उस वक्त सरजमीन अरब के अंदर गुनाह के काम चरम पर थे। उस वक्त लोग गुनाहों में इस तरह मुलव्विस थे कि उसे सच और झूठ का कुछ पता ही नहीं था, सही और गलत में वो लोग तमीज ही नहीं कर पाते थे। इस तरह वो लोग गुनाहों में मुलव्विस थे, इस तरह वो लोग बुराइयों का इर्तिकाब करते थे, इस तरह वो लोग गुनाह के कामों को अंजाम दिया करते थे। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आखिरी नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरजमीन अरब की तरफ नबी बना करके भेजा और जब सहाबाए किराम ने ईमान ले आया अल्लाह के नबी के ऊपर, अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लिया, अल्लाह की वहदानियत की गवाही दे दी, एक एक करके सहाबाए किराम ने बुराइयों को छोड़ दिया और सहाबाए किराम हिदायत के रास्ते के ऊपर गामज़न हो गए। जब तारीख का हम मुताला करते हैं, जब तारीख के औराक को पलटते हैं तो हमें पता चलता है कि सरजमीन अरब के अंदर ज़माने जाहिलियत के अंदर ऐसी ऐसी गुनाहें मौजूद थी और ऐसे ऐसे जरासीम मौजूद थे कि अगर आज हमारे समाज और मुआशरे के अंदर अगर ऐसे कामों का इर्तिकाब कर दिया जाए तो मैं समझता हूं कि आज समाज और मुआशरा ऐसे लोगों को शहर बदर करने के लिए तैयार हो जाएगा, ऐसे लोग बस्ती से ऐसे इंसान को निकालने के लिए तैयार हो जाएगा। ऐसे ऐसे गुनाह सरजमीन अरब के अंदर मौजूद थे, जिन जरासीमों में से एक जरासीम ये था कि वो अपने बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे और इस तरह शराब नोशी किया करते थे कि जब वो खाने के लिए बैठा करते थे तो अपने सामने पानी की जगह शराब को लेकर के बैठा करते थे। जब वो लोग खाने के लिए बैठते थे तो हम और आप खाने के लिए जब बैठते हैं तो बेहतरीन मशरूबात को लेकर के बैठते हैं, बेहतरीन पीने वाली चीजों को लेकर के बैठते हैं। लेकिन सरजमीन अरब के लोग ज़माने जाहिलियत के अंदर लोग शराब को लेकर के बैठा करते थे और जब लुकमा अपने मुंह के अंदर रखा करते थे और जब वो लुकमा उसके हलक के अंदर अटक जाता था तो शराब को पी करके उस लुकमे को अपने हलक से नीचे उतारा करते थे। पानी की जगह वो लोग शराब को इस्तेमाल किया करते थे। ये ज़माने जाहिलियत की हकीकत है और अल्लाह तबारक व तआला ने जब शराब की हुर्मत के ऊपर आयत करीमा को नाजिल कर दिया, ये वही सहाबाए किराम जब शराब की हुर्मत के ऊपर आयत करीमा नाजिल होती है, लिखने वाले लिखते हैं ज़ातुल मआद के अंदर अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि जब शराब की हुर्मत के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने आयत करीमा को नाजिल किया और आखिरी नबी जनाब मोहम्मद
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा किराम के दरमियान में उस आयत करीमा को पेश किया तो लोगों ने शराब को इस तरह सरजमीन अरब की गलियों में बहाया जिस तरह बारिश आ जाने के बाद गलियों में पानी बहता है, जिस तरह नालियां बहना शुरू हो जाता है, बिल्कुल इसी तरह जब शराब की हुर्मत का ऐलान किया गया तो लोगों ने शराब को इस तरह सड़कों के ऊपर और गलियों के ऊपर बहाया। उन लोगों ने मटके को फोड़ दिया और जितने शराब के दुकानें थी सारी की सारी दुकानों को बंद कर दिया गया। मेरे अजीज साथियों, ये सहाबा किराम हमारे लिए उसवा है और ये वो सहाबा किराम है जिन लोगों ने जब अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ईमान लाया और ईमान की बुनियाद पर इन लोगों ने गुनाहों को छोड़ा, इन लोगों ने शराब नोशी को अलविदा कह दिया। मेरे अजीज साथियों, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है वमन युमिन बिल्लाहि यहदी क़ल्बा, जो आदमी अल्लाह के ऊपर ईमान ले आता है फौरन उसका दिल जो है हिदायत के रास्ते के ऊपर गामिज़न हो जाता। ईमान के बाद एक आदमी गलत रास्ते की तरफ जा नहीं सकता। अगर कोई आदमी गुनाह के कामों का इर्तिकाब कर रहा है, अगर कोई आदमी शिर्क की गिलाज़त में मौजूद है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर ईमान नहीं है, उसके दिल के अंदर ईमान हो ही नहीं सकता। जो आदमी ईमान की हालत में भी शिर्क करे, मेरे अजीज साथियों, ये अल्लाह तबारक व तआला की आयत करीमा, इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन एक उसूल को बयान कर रहा है कि ईमान ले आओ, तुम अपने आप को बुराइयों से बचा लो। और दूसरी तारीख की तरफ चलते हैं। सहाबा किराम जब अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ईमान नहीं लाए थे उस वक्त सहाबा किराम की ये हालत थी कि वो लोग ज़िनाकारी के आदी थे, वो लोग सरेआम ज़िना किया करते थे। मेरे अजीज साथियों, जब तारीख के पन्नों को उलटते हैं तो पता चलता है कि सरजमीन अरब के अंदर ज़िनाकारी इस तरह आम थी कि सरजमीन अरब की औरतें के लोगों को ज़िना की तरफ बुलाया करते थे, लोगों को बदकारी की तरफ बुलाया करते थे और लोगों को ये दावत दिया करते थे कि ऐ नौजवानों, अगर तुम अपने जिनसी ख्वाहिशात को बुझाना चाहते हो, तुम अपनी जिनसी ख्वाहिशात को अगर पूरा करना चाहते हो तो ये जगह तुम्हारे लिए सेफ है। और सरजमीन अरब के लोग उस घर के अंदर आया करते थे और बदकारी के कामों को अंजाम दिया करते थे। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने आयत करीमा को नाजिल कर दिया और सहाबा किराम तक इस आयत करीमा को पहुंचाया, वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फाहिशा, ऐ लोगों तुम ज़िना के करीब न जाओ, ये तुम्हारे लिए फहश काम है। जब सहाबा किराम के दरमियान ये आयत करीमा पेश की जाती है, जब सहाबा किराम के सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत करीमा का खंडन करते हैं, सहाबा किराम फौरन ज़िना को अलविदा कह देते हैं, अपने आप को ज़िनाकारी से रोक लेते हैं, अपने आप को ज़िना से दूर कर लेते हैं और ज़िना को अलविदा कह देते हैं। ये है ईमान की पावर। अगर ईमान एक इंसान के अंदर हो और उस इंसान तक अगर अहादीस पहुंच जाए, अगर आयत करीमा पहुंच जाए तो ईमान के मौजूद होने के बावजूद एक इंसान गलत रास्ते की तरफ नहीं जा सकता। अगर ईमान के बावजूद अगर एक आदमी अपने आप को मुसलमान कह रहा है और मुसलमान कहने के बाद अगर गुनाहों की तरफ जा रहा है तो कहीं न कहीं उसके अंदर ईमान नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का यह दावा है वमन युमिन बिल्लाहि यहदी क़ल्बा, ईमान के बाद एक इंसान के दिल को हिदायत के रास्ते की तरफ मोड़ दिया जाता है, हिदायत के रास्ते की तरफ उस इंसान के दिल को मोड़ दिया जाता है। सबसे पहली चीज जो है वो ईमान का होना जरूरी है। बगैर ईमान के हम अपने आप को गुनाहों से नहीं बचा सकते, बगैर ईमान के हम अपने आप को बुराइयों से नहीं रोक सकते, अपने आप को गुनाहों से नहीं बचा सकते। सबसे पहली चीज ईमान का होना लाजिम और जरूरी है। दूसरी